अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमने जो क्वेश्चन प्लान किया है, दिस इज़ 33 मई जून 12। टाइट्रेशन इज़ द क्वेश्चन। यू आर डिटरमाइन टू परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा जनाब, this experiment involves 3 steps. In step 1, you will react the impure calcium carbonate with an excess of acid. In step number 2, you will carry out a titration to find the amount of acid you used in step 1. In step 3, you will carry out a second titration to find how much excess acid remained following the reaction in step number 1. Finally, you will use the values found in the 3 steps to calculate the percentage purity of the calcium carbonate. Assume the impurity in the calcium carbonate will not react with acid or alkali. Okay, fine. Fa1 is sodium hydroxide 0.1 mole per dm cube. Fa2 is approximately 1 mole per dm cube hydrochloric acid. Fa3 is Fa2 diluted by a factor of 10, approximately 0.1 mole per dm cube. By a factor of 10 का मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन उसकी एक्चुअल होगी उसको अप्रॉक्सीमेटली फैक्टर मीन टू इट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय the factor. So 1 divided by 10 is approximately 0.1. Fa4 is a sample of impure calcium carbonate CaCO3. Methyl orange indicator is to be used in this titration. Okay. Step number 1, fill the burette labeled with Fe2. Label Fe2 with Fe2. Run 50 cm cube of Fe2 into a 250 cm cube beaker. Weigh the tube containing the impure calcium carbonate Fa4. Tip the contents of the tube in small portions into the acid to avoid spray. Stir the mixture and leave the stirring rod in the beaker. Reweigh the tube containing any residue. Record the wings and the mass of Fa4 added in a suitable form below. जो इसमें required headers थे वो मैंने लिख लिए हैं. Mass of the tube Fa4, mass of the tube plus residue in grams, mass of Fa4 used in grams. अच्छा, अब हम इन्हें मेजर कर लेते हैं और मेजर करने के बाद हम आपको तमाम चीज़ें स्टार्ट करते हैं. First part is fill the label tube Fa2 with Fa2. So this is Fa2. मैं Fa2 से इस ब्यूरेट को पहले रिंस कर लूँगा. मैंने डिस्टिल वाटर से रिंस किया हुआ है. पहले मैं इसे Fa2 से रिंस कर लेता हूँ. थोड़ा सा Fa2 आपने ब्यूरेट के अंदर लिया और उसके बाद इस ब्यूरेट को, इसकी तमाम वॉल्स को अच्छे से रिंस कर लेना है एंड देन डिस्कार्ड द लिक्विड. ब्यूरेट हमारा रिंस हो चुका है. अब हम इसमें Fa2 फिल कर लेते हैं. मैंने Fa2 का वॉल्यूम 0 से ऊपर तक ले लिया है. 0 से ऊपर तक हमने इसके अंदर वॉल्यूम ले लिया है क्योंकि हम जानते हैं कि अभी इसका जेट एम्प्टी है. पहले इसके जेट को फिल करेंगे. नाउ फिल एयर बबल, तमाम का तमाम एयर इसमें से रिमूव कर देना है और अब इसे रीसेट करते हैं 0 पे. और ये ब्यूरेट मैंने 0 पे सेट कर लिया है और इस ब्यूरेट को सस्पेंड कर दिया. द नेक्स्ट स्टेप इज रन 50 cm Fa2 into a 250 cm बीकर प्रोवाइडेड. ये एक मुझे बीकर प्रोवाइडेड है. इस बीकर में इसको रिंस कर लेंगे पहले डिस्टिल्ड वाटर से और अब इस 250 cm क्यूब के बीकर के अंदर हम 50 cm क्यूब Fa2 ट्रांसफ़र कर लेते हैं. जीरो से मैंने स्टार्ट किया है और मैं इसको 50 पे ले जाके रोक दूंगा. और ये 50 पे आ चुका है. 50 cm क्यूब इसमें से ट्रांसफ़र कर लिया है हमने. अब मुझे बोला जा रहा है कि इस वाले पार्ट को, ब्यूरेट को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि प्रोबेबली हमें इसको ब्यूरेट को दोबारा यूज़ नहीं करना होगा. इसके अंदर Fa2 था, वो Fa2 वापस से बीकर में खाली कर देते हैं.
make sure if I am going to use the burette again, so I need to rinse it first distilled water and then with the corresponding solution. अच्छा, अब हम चले जाते हैं इसके सॉलिड मास मेजरमेंट वाले पार्ट में. Here is the tube that is labeled FA4. अब FA4 का मास ऑफ द ट्यूब प्लस FA4, माई बैलेंस इज रेडी. इस बैलेंस के ऊपर मैंने मेक श्योर इट इज इन ग्राम and initially it was at 0. So the reading is 28.21 grams. Mass of the tube plus FA4, it is 28.21 grams. अच्छा जी, अब इसे हमें ट्रांसफ़र करना है स्लो इस बीकर के अंदर. टिप द कंटेंट ऑफ द ट्यूब इन स्मॉल पोर्शन इनटू द एसिड. दिस इज द एसिड Fe2, और इसमें स्लो इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं. You need to add all in small portions to avoid any acid spray. It's done, the tube is empty. Leave this beaker and mass of the tube plus residue. Let us reweigh the tube. This is 26.08 grams. Mass of Fa4 used. I'll simply subtract the tube with residue from tube with Fa4. 28.21 minus 26.08, and the result is 2.13 grams. 2.13 grams solid has been taken or transferred into the beaker. 2.13 grams. 2.13 grams. ओके जनाब, सॉलिड हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं. टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं. फिल द ब्यूरेट लेबल Fa1 विद Fa1. अच्छा, मैं एक ही ब्यूरेट यूज़ कर रहा हूँ. मैं इसको वापस से पहले रिंस करूँगा डिस्टिल्ड वाटर से, और इस लिक्विड को डिस्कार्ड कर देंगे. अब क्योंकि इसके अंदर लिक्विड चेंज हो रहा है, लिहाजा मुझे इसको कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड से भी रिंस करना पड़ेगा. हियर आई विल रिंस इट नाउ विथ Fa1. थोड़ा सा Fa1 लिया इसके अंदर. इसकी वॉल्स को अच्छे से रिंस करना है. Rinsing is done. Discard the liquid. Okay, now I'll set the burette. Fill the jet now. Remove all the air from it. Now reset at 0. और इस ब्यूट को सेट कर दिया. अब ब्यूट को 0 पे सेट कर लेते हैं. थोड़ा सा ऊपर था. Now it is at 0. So initial burette reading is 0. The next thing is
Fill the burette labeled FA1 with FA1. Pipe it 25 cm cube of FA3 into a conical flask. अब हम conical flask देते हैं. First of all, rinse the conical flask as well with the distilled water. Now I'm done. Now we need to measure 25 cm cube of FA3. This is FA3. 25 cm cube. We'll use a pipette for that. But before using FA3, rinse the pipette again. Take a little part in the burette, in the pipette, and rinse the pipette. Make sure the liquid must not go into the pipette filler and discard it. Again, fill the pipette with FA3. It's done. And transfer it into the conical flask. $25 cm cube FA3 पाइपेट किया जा चुका है. अब इसे टाइट्रेट करना है FA1 से. Add methyl orange indicator. This is methyl orange indicator. We'll add a few drops. Here. This is the original color of methyl orange. क्योंकि हमने जो FA3 लिया, see FA3 is acid diluted by a factor 0.1 mole per decimeter cube acid. तो हम जानते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर डार्क पिंक और एल्कलाई में इसका कलर येलो होता है. अब इसे टाइट्रेट कर लेते हैं. जैसे ही ये ऑरेंजिश पिंक होगा, वी विल स्टॉप देयर. विल स्टॉप हियर. हम इस कलर पे रुक गए और हमने इसका इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग हमारे पास 0.00 था. लेट अस रीड द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग. दिस इज 38.9. वॉल्यूम यूज्ड इज 38.90. ये कॉलम भी मैंने ऑलरेडी बना लिया था, ये टेबल में बना चुका था. इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इन cm क्यूब 0.00, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इन cm क्यूब 38.90, वॉल्यूम ऑफ FA1 यूज्ड 38.90, द रफ राइटर इज 38.90. ये कर लेने के बाद कैरी आउट एज मैनी टाइट्रेशंस एज यू थिंक नेसेसरी टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. मेक सर्टेन एनी रिकॉर्डेड रिजल्ट शो द प्रिसिशन ऑफ योर प्रैक्टिकल वर्क. अच्छा जनाब, यहाँ पे इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग लिख लिया मैंने, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ FA1 यूज्ड और बेस्ट टाइटर. हम जानते हैं रफ टाइट्रेशन और एक्यूरेट टाइट्रेशन में इस बेस्ट टाइटर का एक मेजर फ़र्क होता है. फर्स्ट रन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने बहुत सारे कॉलम्स ड्रॉ कर लिए हैं. मैं सिर्फ इतनी टाइट्रेशन परफॉर्म करूंगा जहां पे मेरे पास दो टाइटर वैल्यूज़ या तो 0.1 प्लस माइनस के डिफरेंस के साथ आ जाएं या फिर उनके दरमियान कोई डिफरेंस ना हो. मतलब ये वाली वैल्यू वॉल्यूम ऑफ FA1 यूज जहां पे मेरे पास दो कांस्टेंट आ जाएं या दो में प्लस माइनस 0.1 का डिफरेंस आ जाए. आई विल स्टॉप देयर. सो लेट अस स्टार्ट इट अगेन. अब मैं दोबारा से अपनी टाइट्रेशन स्टार्ट कर लेता हूँ. इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इज, आई विल सेट इट अगेन एट 0.00. आई विल रिफिल द ब्यूरेट नाउ. इसे स्टार्ट करेंगे. पहले टैप वाटर से वॉश कर लेंगे.
After washing it with the tap water, you will rinse it with the distilled water. Refill with Fa3 again, 25 cm cube Fa3. और टाइट्रेशन बहुत जल्दी जल्दी परफॉर्म की जाती है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगाना आपने. I have taken 4 drops. ब्यूरेट को रीसेट करना पड़ेगा. मैंने फनल को भी Fa1 से रिंस कर लिया. अब इसे दोबारा से रिफिल कर रहा हूँ 0 तक. जब भी आप फनल को यूज़ करेंगे ब्यूरेट भरने के लिए, आपको फनल को उसमें से रिमूव कर देना है. The burette is at 0. ये इसका प्रॉपर अरेंजमेंट है. ब्यूरेट का जो एंड है वो थोड़ा सा इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर होना चाहिए. Now I obtained orangish pink color. It's orange. The reading is 7.60. Volume of Fa1 used, final minus initial, it's 37.60. अब मैं इसे दोबारा से डिस्कार्ड कर देता हूँ. डिस्टिल वाटर से रिंस कर लिया. Fa3 दोबारा फिल कर लेते हैं. इंडिकेटर ऐड कर देते हैं. ब्यूरेट को वापस से रिफिल कर लेते हैं. अच्छा जनाब, मैंने इसको दोबारा से 0 पे सेट कर लिया. सेकेंड रन इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इज 0.00. Now I'll titrate the contents again. (36) तक कंटिन्यू जाने दें, उसके बाद ड्रॉप वाइज एडिशन स्टार्ट कर लेंगे हम.
Again, I got that color. And the result is 37.40. Volume used is the difference of these two values, 37.40. Okay, now look at the table. First titer value was 37.60, second was 37.40. They both are not consistent. The difference should be either plus minus 0.1 or no difference. I'll discard it again. Rinse the contents with distilled water. Again 25 cm cube Fa3. वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो मैं आई हूँ सिर्फ वैसे आप आएंगे, बाकी बच्चे कम है ना? कोई बच्चा नहीं आना, कोई बच्चा छुट्टी छुट्टी मारी ना बच्चा ना? मैं छोटा भाई को ढूंढ के ले आऊँ। कहाँ है मैं नहीं रहा, वो? भी कहीं एमबीएन में तो चला गया। पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। एक और बच्ची है, उसको हाँ ढूंढ लो। ओके जनाब, वापस से 0 पे सेट कर लेते हैं। Fa1 ब्यूरिट मेरा 0 पे सेट हो गया है। अब इसे वापस से टाइट्रेट करते हैं। See, I got the color. अच्छा, अब हम ब्यूरिट रीडिंग नोट कर लेते हैं। दिस इज 37.60 37.60. I started from 0, 37.60. Volume used is 37.60. Okay, see. These are the results which I obtained. I have got these two titer values same, so I won't repeat it again. I'll place a check under these two values like this, and the performing work is, for the first step it's done. See, step number 3. Stir the mixture from step number 1 again to ensure that all the solid has dissolved. Transfer the solution to 250 cm cube graduated volumetric flask labeled Fa5. Rinse the beaker twice with a little distilled water and add the washings to the graduated flask. Make the solution up to 250 cm cube with distilled water. Ensure that the contents of the flask are thoroughly mixed. Transfer 25 cm cube of this solution Fa5 into a second conical flask using a second pipette. Perform a rough titration and record your burette reading in the space below. अच्छा, हमें टाइट्रेट इसको करवाना है। ट्रांसफर 25 cm cube of this solution into second conical flask using a second pipette. अच्छा, इसकी भी टाइट्रेशन हमें Fa1 से ही करवानी है। So Fa1 will remain in this burette. This is the beaker, the mixture that we made. वो बोलते हैं कि इसको अच्छे से shake well. I did it.
This is the graduated volumetric flask. 250 ml graduate volumetric flask. आप इसे पहले डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करेंगे. Then they said transfer all this liquid into the volumetric flask. इसे रिंस कर लेंगे. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देते हैं. Now add the washings as well. This step is called the addition of washings into the same flask. Twice. हम ये इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई पार्टिकल रह ना जाए. सारा का सारा ट्रांसफ़र हो गया है. ये भी हो गया. Now they said make up the solution up to 250 cm cube. ये इसका मार्क मौजूद है इसकी नेक पे. यहाँ तक अब इसके अंदर हम बाकी का सारा पानी भर देंगे. इस ब्राउन मार्क तक ये 250 cm क्यूब कंप्लीट हो गया है. अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर बन चुका था उस वाले मिक्सचर को अब टाइट्रेट करवाना है Fa1 से. पाइपेट को रिंस कर लेते हैं. थोड़ा सा लिक्विड लिया, पाइपेट को रिंस किया, इसे डिस्कार्ड किया. Now I'm measuring Fa5 to 5 cm cube. मैंने ब्यूरेट को Fa1 के साथ सेट कर लिया है और अब इसे दोबारा टाइट्रेट करवाते हैं. देखिए जनाब, ये येलो नहीं होना चाहिए और ऑरेंज कलर पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि रफ़ टाइट्रेशन है. ये मैंने थोड़ा सा इसको येलो की तरफ टर्न कर दिया, लेकिन एक्यूरेट टाइट्रेशन के लिए इसके अंदर ऑरेंज शेड होना चाहिए. रफ़ टाइट्रेशन में हमेशा एक्सेसिव लिक्विड ऐड किया जाता है. अच्छा जी, अब मैं इसका रफ़ टाइट्रेट लिखने के लिए वापस से इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग लिखेंगे. इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इन cm क्यूब, final burette reading in cm cube. Initial was 0.00 and the final is 21.20. 21.20. The rough titer is final minus initial, it's 21.20. अच्छा, अब वापस से हमें
दोबारा से टेबल बना लेना है, वही इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, वॉल्यूम यूज, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग in cm cube, volume of Fa1 used in cm cube, and again the best titer. अच्छा, अभी के लिए मैंने ये किया है कि इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग की जगह IBR लिख दिया, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग की जगह FBR लिख दिया, मगर आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ Fa1 यूज, प्रॉपर जुमला लिखना है आपको। ये शॉर्ट हैंड्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते। अच्छा जनाब, इस तरीके से देखिए, मैंने वापस से टेबल बना लिए हैं। IBR इज़ फॉर इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, मेक श्योर यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस। आप ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग लाइक दिस, ऐसा लिखना है आपने। अच्छा, रफ टाइटर मैंने ले लिया है, अब मैं इसे डिस्कार्ड करूँगा। वापस से Fa5 25 cm क्यूब, फोर ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, ब्यूरेट को रीसेट कर लेते हैं। ब्यूरेट 0 पे रेडी है। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग is 0.00 फॉर फर्स्ट एक्यूरेट टाइट्रेशन। से यहाँ पे इस ऑरेंज कलर पे आपको रुकना है, येलो की तरफ इसे नहीं लेके जाना। इसमें बहुत मामूली सा पिंक कलर भी दिखना चाहिए और ऑरेंज कलर भी दिखना चाहिए लाइक दिस। इसे हमें येलो नहीं करना। सो द टाइटर वैल्यू इज 17.20। अब क्योंकि 17 आया है, वी कैन कंटिन्यू इट। अगर हमारा टाइट्रेशन वैल्यू किसी भी टाइटर का बिलो 25 होगा, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्यूरेट इज 50 cm क्यूब। अगर ये 25 से पहले टाइटर वैल्यू आ जाएगा, सो यू कैन री यूज द सेम ब्यूरेट। अच्छा जी, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है क्योंकि ये 17.2 पे रुका था और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप करते 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 इसमें से 1 cm क्यूब ऑलरेडी मिस हो गया। तो नाउ द इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इज़ 18.20। इनिशियल इज़ 18.20। अब मैं 18.20 से अब आपको एक एस्टिमेट लगाना है
18.20 is the initial purity reading. 18.20. अब हम जानते हैं कि अगर इसके अंदर दोबारा से मुझे 17.20 अप्रॉक्सीमेटली जो कि फर्स्ट टाइटर रीडिंग था वो ऐड करना है तो मेरा वैल्यू 35.4 के करीब कहीं आना चाहिए. लेट्स सी. सी. इसको अप्रॉक्सीमेटली ऑरेंज कलर हो गया है. ब्यूरेट नोट करते हैं. रीडिंग इट्स 35.20. 35.20. तो जो डिफरेंस आया हमारे पास वो आया 17.00. फर्स्ट टाइटर वॉज 17.20, सेकेंड इज 17.00. ये दो रीडिंग आ गई. दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. अब क्योंकि मेरे पास जो वॉल्यूम है इट इज़ लेस देन 17.2 cm3, लिहाजा अब मुझे इसे रिफिल करना होगा. और तकरीबन इतना लिक्विड इसके अंदर होना चाहिए 17.2 cm3. अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद रिफिल कर लिया. इनिशियल रीडिंग है इसकी इस वक्त 15.10. 15.10 इज़ द इनिशियल रीडिंग. अब मुझे ये देखना है कि 15.10 में अगर मुझे 17.2 ऐड करना हो तो फाइनल रीडिंग मेरे पास 32.3 cm3 आना चाहिए. लेट्स चेक. देखिए जनाब, ये वही कलर आ गया जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट था. अब हम ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लेते हैं. दिस इज एग्जैक्टली 32.20. 32.20. लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस. 32.20 माइनस 15.10. रिजल्ट इज 17.10 cm3. अच्छा, अब क्योंकि मुझे इसको मज़ीद परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, 17.2, 17.0, 17.1, ऑल दीज थ्री आर कंसिस्टेंट रीडिंग्स, सो आई विल प्लेस चेक बिलो ईच टाइटर वैल्यू. यहाँ पे परफॉर्मिंग वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम ज़रा इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं. ओके स्टूडेंट, इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं ज़रा हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1. NaOH plus HCl react together to form NaCl and H2O. From your accurate titration results in step number 2, obtain a suitable value to be used in your calculation. Show clearly how you have obtained this value. अच्छा, स्टेप नंबर 2, हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं. दिस इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 के अंदर मेरे पास जो टाइटर वैल्यू था 38.9 रफ था,
वो बोल रहा है एक्यूरेट टाइट्रेशन वैल्यू लीजिए। एक्यूरेट था मेरे पास 37.6 और वो बोल रहे हैं कि इसी को यूज़ करें। मैंने यहाँ पे 37.60 प्लस 37.60 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लिया और आंसर आया 37.60। अच्छा जनाब, अगले पार्ट पे चलते हैं। यूज योर आंसर फ्रॉम 1 टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड Fa1 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 cm³ Fa3 इन स्टेप नंबर 2। हमने जो Fa1 लिया था इट वॉज 25 cm³। स्टेप नंबर 2 पाइप 25 cm³ ऑफ Fa3 सोडियम हाइड्रोक्साइड Fa1। अच्छा, ये फिल द ब्यूरेट विद Fa1, ये Fa1 का ही वॉल्यूम है जो हमने लिया है, ये वॉल्यूम Fa1 का है। 25 cm³ Fa3 रिक्वायर्ड 37.60 cm³ ऑफ Fa1। अब ये बोल रहे हैं कि इसके मोल्स बता दीजिए। हम जानते हैं मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम है मेरे पास 37.60 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fa1। Fa1 की कॉन्सेंट्रेशन पहले पेज पे गिवन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे और इसका आंसर आता है मेरे पास 0.0376 टाइम्स 0.1। रिजल्ट इज 3.76 एक्सपोनेंट माइनस 3। इतने मोल्स हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के थे। यूज योर आंसर फ्रॉम 2 दिस वन फ्रॉम 2 टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 25 cm³ ऑफ Fa3। हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन रेशियो 1:1 है। तो जितने मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के होंगे उतने ही मोल्स एसिड के भी होंगे। NaOH रेशियो HCl 1:1। 3.76 एक्सपोनेंट माइनस 3 रेशियो 3.76 एक्सपोनेंट माइनस 3 3.76 एक्सपोनेंट माइनस 3। इतने ही एसिड के मोल्स आ गए। Fa3 वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डाइल्यूटिंग Fa2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 50 cm³ ऑफ Fa2। Fa2 के 50 cm³ में Fa3 was produced by diluting Fa2। अच्छा जी, Fa3 was produced by diluting Fa2। Fa2 के 50 cm³ में कितने मोल्स थे? Fa3 diluted by a factor of approximately 0.1 और इसका जवाब हमें देना है। अच्छा जनाब, Fa2 के 50 cm³ में कितने मोल्स हैं? Fa2 इज़ 1 मोल पर dm³ Fa2 इज़ 1 मोल पर dm³ और Fa3 इज़ Fa2 डाइल्यूटेड बाय फैक्टर ऑफ 0.1। तो Fa3 की कॉन्सेंट्रेशन मुझे दी गई है, Fa3 इज़ 0.1 मोल पर dm³। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है Fa3 वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डाइल्यूटिंग Fa2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 50 cm³। 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू Fa2 के कॉन्सेंट्रेशन। Fa2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, 50 डिवाइड बाई 1000 टाइम्स 1 और रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 50 cm³ में 0.0500 इतने मोल्स Fa2 के मौजूद हैं। क्लियर? अच्छा, फ्रॉम योर एक्यूरेट टाइट्रेशन रिजल्ट इन स्टेप नंबर 3 ऑब्टेन अ सुटेबल वैल्यू टू बी यूज फॉर योर कैलकुलेशन। शो क्लियरली हाउ यू हैव ऑब्टेन। स्टेप नंबर 3 का टाइटर वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस वॉज स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 3 का एवरेज वॉल्यूम 17.012। इन तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा हमें। 17.0 प्लस 17.1 प्लस 17.2 इनका एवरेज आएगा डिवाइड बाई 3 17.10। अच्छा,
यूज योर आंसर फ्रॉम 1 to calculate the number of moles of sodium hydroxide Fa1 required to react with 25 cm³ of Fa5 in step number 3. अच्छा जी, इतना वॉल्यूम Fa1 का यूज़ हुआ. अब इससे इसके मोल्स निकाल लेते हैं. मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन. वॉल्यूम था 17.10 डिवाइड बाई 1000. कॉन्सेंट्रेशन आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन है 0.1. ये रहा 0.1 कॉन्सेंट्रेशन, और 0.1 मैंने वापस से यूज़ किया. 0.0171 टाइम 0.1, 1.71 एक्सपोनेंट माइनस 3. इतने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करने में इस्तेमाल हुए. अगले पार्ट पे चलते हैं. यूज योर आंसर फ्रॉम 2 टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 25 cm³ Fa5. जाहिर सी बात है 1:1 का रेशो है. HCl रेशो NaOH 1:1. तो यही मोल्स 1.71 एक्सपोनेंट माइनस 3, 1.71 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, यही मोल्स आ जाएंगे. यूज योर आंसर फ्रॉम 3, यही वाला आंसर. टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 250 cm³. अच्छा, ये जो 25 cm³ Fa5 था, इसके अंदर इतने मोल्स है. ये बोल रहे हैं Fa5 के 250 में कितने होंगे. तो जब 25 में 1.71 एक्सपोनेंट माइनस 3 हैं, तो 250 में 1.71 इंटू 10 माइनस 3 टाइम्स 10 हो जाएंगे, है ना. 25 टाइम्स 10 इज 250. 1.71 एक्सपोनेंट माइनस 3 टाइम्स 10, इट्स गोइंग टू बी 1.71 एक्सपोनेंट माइनस 2. अच्छा, अगले पार्ट पे चलते हैं. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 सॉलिड प्लस HCl CaCl2 aqueous प्लस CO2 प्लस H2O लिक्विड, CO2 गैस, HCl aqueous. अच्छा जनाब, CaCl2 H2, यहाँ पे 2 लगा देते हैं. 1:2 का रेशियो जाएगा. H2 Cl2 Cl2, 1Ca 1Ca, CO3 CO2 प्लस 1 3. डन है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट रिएक्टेड विद कैल्शियम कार्बोनेट इन Fa4 यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. मोल्स ऑफ HCl इक्वल्स टू B4 माइनस C4. B4, दिस इज B4. 0.05 माइनस C4. C1 2 3 4 C4 1.71 एक्सपोनेंट माइनस 3. इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.05 माइनस 0.00171, 0.08 0.0483, 0.0483. इतने मोल्स आ गए मेरे पास HCl के, जिन्होंने रिएक्ट किया टोटल कैल्शियम कार्बोनेट से. यूज योर आंसर फ्रॉम 1 and 2 टू कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. वो हमने कैलकुलेट कर लिया है. और पहले पार्ट में जो हमने मास कैलकुलेट किया था, इट वाज 2.13 ग्राम्स. अच्छा जी, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी बाय मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इन Fa4. Use your answer from 1 and 2 to calculate the mass of calcium carbonate in Fa4 if you are unable to D2. ओ 1 और 2 से निकालना है. 1 और 2 से निकालना है. सॉरी, इट्स रॉन्ग. अच्छा जी, 1 और 2 इसकी बात हो रही है. अब यहाँ पे मेरे पास मोल्स है एसिड के इतने. ये मेरे पास एसिड के मोल्स हैं 0.0483. हम जानते हैं 2:1 का रेशो है. तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 0.0483
डिवाइड बाई 2, 0.0483 डिवाइड बाई 2, मोल्स आ गए कैल्शियम कार्बोनेट के 0.0242। अब बात हो रही है मास की, मास इक्वल्स टू इनटू mr। मोल्स है मेरे पास 0.0242। कैल्शियम कार्बोनेट का mr कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 प्लस 12 प्लस 48, इट्स 100। कैल्शियम कार्बोनेट का mr 100, um, 2.42 इतना ग्राम आ गया। अच्छा, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी बाय मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इन Fa4। अब Fa4 का मुझे ओरिजिनल मास चाहिए और Fa4 का थ्योरेटिकल जो हमारे पास मास था वो ये आया। अब मुझे Fa4 का ओरिजिनल मास चाहिए जो मैंने पहले पार्ट में लिया। यहाँ पे अब छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखिए जो हमने मास मेजर किया था इट वाज 2.13 और जो हमने एक्चुअल मास कैलकुलेट किया वो आ रहा है 2.42 विच इज़ मोर देन द मेजर्ड मास। तो ये कंडीशन बहरहाल एक अजीब सी आ गई है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इस कैलकुलेशन का हल होना क्या था। सपोज़ कर लेते हैं कि ये मास 2.13 नहीं था, ये आया मेरे पास 2.78 ग्राम्स फॉर एग्जांपल, सिर्फ कैलकुलेशन को करने के लिए। तो दिस इज़ टोटल मास 2.78 और दिस 2.42। व्हाट यू विल डू, 2.42 डिवाइड बाय 2.78 इंटू 100 और इससे जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगी आप वो यहाँ पे इसका नोट कर लेंगे। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एरर इन अ सिंगल ब्यूरेट रीडिंग? इट इज़ 0.10 cm3। कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर फॉर वन ऑफ योर एक्यूरेट टाइटर्स। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, जब टाइटर की आप बात करते हैं तो एक इनिशियल एरर होता है, एक इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग होती है और एक फाइनल ब्यूरेट रीडिंग होती है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, हाँ मैक्सिमम एरर होता है 0.1 डिवाइड बाई 2, लीस्ट काउंट डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 0.05। दिस इज द सिंगल ब्यूरेट एरर, लीस्ट काउंट डिवाइड बाई 2 एब्सोल्यूट एरर। अच्छा अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर फॉर वन ऑफ योर एक्यूरेट टाइटर्स। टाइटर के लिए आपने टाइट्रेशन के लिए ब्यूरेट को 2 दफ़ा पढ़ा होता है, एक इनिशियल रीडिंग एक फाइनल रीडिंग। हमने दोनों जगह पे ये एरर किया होता है। तो 0.05 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय वन ऑफ योर एक्यूरेट इन स्टेप 3। स्टेप 3 का कोई भी एक एक्यूरेट ले लेते हैं, 17.10 ले लेते हैं। 17.10 इंटू 100, इससे इसका आंसर आ जाएगा। A student decided to use a larger mass of Fa4. State and explain whether this alteration will improve the accuracy of the percentage purity obtained. अच्छा, अगर आप इस तरीके से Fa4 के मास को इंक्रीज़ करेंगे तो जो एसिड होगा Fa5 में उसका क्वांटिटी कम रह जाएगा और जब भी आप किसी रिएक्टेंट का क्वांटिटी कम करते हैं तो उससे अनसर्टेनिटी बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इसका जो आंसर है इट्स नो बिकॉज द मोर मास ऑफ CaCO3 sorry it's Fa4 will leave behind the lesser moles of acid in the mixture, lesser and more uncertain
वॉल्यूम ऑफ NaOH विल बी रिकॉर्डेड। सिंपल ये इसका जवाब था। क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया है। उम्मीद है कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आएंगी तो आप लोग मैसेज करके या क्लास के अंदर मुझसे बातें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।